Welcome all, welcome to the PID webinar. Today we're going to take up a very important subject. This is the beginning of our sludge series. What is sludge? Sludge, I think sabko pata hai, and let's talk about it. Sludge is daldal in Urdu, or something even worse. Sludge in the West is the waste that collects in that kind of people, or something that's thick and hard to wade through. And that's the same thing that we see in Pakistan. Business is very difficult to do in Pakistan. The World Bank did this report, which has now discredited these for doing business. But we Pakistanis know how difficult it is to do business here. And the name of Pakistan that I have coined is Permissionistan, or what would you call it? NOCistan. We are caught in a sludge of permissions and NOCs. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस स्लज को समझने की कोशिश करें, क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि लोगों को कितना टाइम लगता है, क्या होता है इस स्लज को नेविगेट करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि जी हर एरिया में जाके हम देखेंगे कि कितनी परमिशंस हैं, कितने एनओसीज हैं, कितना टाइम लगता है, कितने दफ्तरों के बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि बाकी दुनिया में अब ये टाइम रिड्यूस हो गया, सब कुछ ऑनलाइन होता है और लोग वेट नहीं करते, काम शुरू कर देते हैं कल से। तो दिस is a very important subject that we are tackling. We will give you a sludge report in various sectors, maybe almost every month or even 2 weeks. So we'll give you regular sludge reports. We will be doing sludge work in PID as a regular basis, where we will tell you कि जी ये क्या चक्कर है, regulations इतनी क्यों हैं, क्यों इतने दफ्तरों में जाना पड़ता है, क्यों दफ्तरों में अड्डियां रगड़नी पड़ती हैं, क्यों हमें हमारे जो बिजनेसमैन है सारे भागे फिरते हैं दफ्तरों में। तो ये हमारा इसमें एम है। So let's hope that we'll get good comments from you, because we really have to make this work. And these people, Ahmed Waqar Qasim and Idris Khaja, both have been working very hard on it for the last few months. They have produced this sludge report. I congratulate Idris Khaja and Ahmed Waqar, both PIDE research economists, well-known people who have done a lot of work. Idris Saab was also the Dean of Air University. Ahmed Waqar Qasim is a young PIDE researcher whose, mashallah, career is taking off very well. So to proceed, let me ask Waqar to present the report. Then we've got a lovely panel, a great panel. I'll introduce the panel later and we'll start the discussion. Waqar, can you quickly, don't take too long so that we can have a good discussion. Thank you. Waqar sir. Yes, sir. Can you see my slides? We can. Go ahead. Thank you so much, sir, and welcome, dear participants. As Dr. Nadeem pointed out that this webinar is the first of webinar series about PIDE sludge reports. Today in our first webinar, we will discuss the sludge involved in obtaining construction permits for both single unit house residential constructions as well as for high-rise, along with housing loans. So before moving forward, let me review very quickly what sludge means in the economy. Cass Sunstein, one of the leading authors on the sludge, defines sludge as excessive or unjustified friction that make it difficult for the people to get what they want or to do things what they want to do. The examples of sludge are many. For example, seeking permissions, waiting for approvals, waiting in queues to get tasks done, doing manually what is possible digitally, and so on. Now, the big question is why sludge matters. Sludge actually impedes decision making by making it more difficult for people to navigate through their everyday lives. It also imposes cost upon the economy in terms of waste of resources and opportunity cost. This discourages investments, lower productivity, and therefore constrain GDP growth. It can also be used as a tool to seek rents, which again constrain economic activity and GDP growth. It also imposes some psychological cost as well in the form of frustration and humiliation. The basic objectives of the PIDE sludge series are threefold.
which are to highlight the sludge involved in different activities, induce the concerned agencies to work for reducing sludge, and lastly, to pin down areas where sludge can be reduced by shortening the process or by digitization. First activity to start with is obtaining construction permit for a high-rise building from the Capital Development Authority. To register the sludge that is involved in this activity, as well as in other activities, we collected information through multiple interactions and in-depth interviews with stakeholders, including concerned government agencies, private entities, and the applicants are the service users. The information collected from the stakeholders covers basically three key dimensions in order to point out the sludge. First, we measure the time involved in performing a task. The time to perform a task is then further divided into processing time, which is actual time to execute a step, overhead time, that is the part of the day lost due to being involved in the activity for a fraction of the day, and last, the agency time, that is time consumed by the agency in processing an activity. The second key dimension is to measure monetary cost incurred at each step of the activity. This monetary cost is again divided into fee and allied costs and opportunity cost, which is income earned if the time consumed in this activity is put on an alternative use. It is actually measured by multiplying total processing time with the per capita gross national income. Lastly, we also gauged the stress level involved in each step. The stress has been assessed based on 4 points, which are effort level of the applicant for performing a task, time involved in completion of the task, how crucial the step is for the completion of an activity, and the probability that the task may not be allowed or approved by the authority. The assessment is based on in-depth interview of the applicant and stress ranked from 1 to 5, where 1 represent low stress and 5 represent high stress. Now coming back to obtaining the construction permission from CDA, our findings indicate that the total time involved is more than 4.5 years in case of high rise, where relevant agencies take more than 3.5 years to issue different NOCs and certificates. While in terms of financial cost, the total cost is more than 2 million. Meanwhile, getting high-rise permission is a highly stressful activity with a score of 4.2 out of 5. So this is a brief summary of the steps involved in high-rise permission in a flowchart. The details of the steps, which are around 120, are in the report, and I hope this report will be available online by the end of this webinar. In terms of time consumed, obtaining NOC from Environmental Protection Agency is the highest time consuming step, followed by NOC from Civil Aviation Authorities. So obtaining these two NOCs actually take more than 2 years. The waiting time from the application submission to site inspections by different agencies ranked third most time taking as well as most stressful step. One interesting point to highlight the sludge here is that it involves around 13 visits to CDA only from application submission to the approval certificate in this activity. Along with high-rise construction permission, we have also considered the case of obtaining permission to construct a single-unit housing unit, single-unit residential house. In case of residential construction, the time consumed to obtain permission is around 9 months, with major time taken by the CDA, which is roughly 6 months. The task also cost more than 185,000 rupees for a plot of 150 square yard with market value 6 million. Most applicants in this case have also highlighted the element of bribe as well. And the average amount of bribe is around 75,000. This activity is again high stress activity with a score of 4 out of 5.
On the similar fashion, a very brief flow chart of the activity is presented in this slide. In this case, the waiting time of site inspection by the building inspector and his report submission leads the time consumption as well as stress level involved. While developing, designing and approving building plan with architect is the second most time consuming task. The further detail of each task is presented in the PIDE report on residential house permission. Now, when we approach CDA and ask them about the steps involved within CDA in order to process the application of residential construction permit along with officially claimed time, they reported the following procedures. That is the application submitted at one window and then application forwarded to assistant director forward the application to deputy director forward to steno for approval and drafting the letter, then letter forward to deputy to assistant and so on. And as per official claim, this whole process takes between 15 to 20 working days. However, there is a stark difference between official claim and what we have learned from the respondents who have actually applied for the permissions. The next activity we would like to present today is about getting a loan for house building, especially under the Prime Minister's Mera Pakistan Mera Ghar initiative. To avail housing finance from banks, provided you satisfy some critical criteria, takes more than 4 months and costs you around 15,000 rupees along with the high stress. Our findings indicate that actual time in processing a house loan takes 4 times more than the bank's described time, which I will present in the coming slides. Moreover, the applicants have also shown some serious concerns over the excessive documentation and unaccommodating attitude or public dealings of the banking staff during the process. Once again, we presented here the flow chart of housing finance in a summarized manner. As you can see that waiting for approval of the loan once inspection and all bank's concerns are settled is the main time consuming task here. This slide shows the official claims of banking sector in terms of time involved at each step of processing application within the bank. So according to bank, it takes not more than a month from application submission to approval. However, our findings shows that it takes more than 4 months. So with this, I should stop here. Thank you so much. Dr. Nadeem, sir, please unmute yourself. Thank you. Thank you very much, Waqar. Thank you very much, Idris. I think that is very nice. Enjoyed it. Yes, it identifies the sludge. Now, of course, we can quibble about how accurate or whatever it is, but it's important to start doing it and start asking the question, how long does it take and why does it, what kind of stress it causes? And you've given us a good picture of 3 sectors, 3 important sectors relating to construction. We will, inshallah, give you much more in the days to come because we've got a lot of people working on it. We will give you sludge everywhere we can find the daldal. ये जो दलदल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं जब हमने कोई काम करना हो, दलदल of attestations, NOCs, permissions, तो इस पे देखते हैं. अच्छा, हमारे पास बड़ा अच्छा पैनल है इस पे बात करने के लिए. We have Mr. Faisal Naeem, Director of Building Control, CDA. So let me begin with Faisal Naeem Saab. Faisal Saab, would you like to comment on our sludge report? Faisal Saab hasn't joined, sir. Hasn't joined. Okay. Then let's go to, in the banking sector, let's go to Mia Muhammad Faraz Khalid, Head of Housing Construction Finance. क्यों जी in Askari Bank? Faraz साहब आप बताइए आपका क्या view है? First of all, I would like to thank you very much for the invitation and giving me an opportunity to present the bank's perspective on these mortgages. I've gone through the report. I really appreciate the nice effort made by your team, and it is indeed a good initiative as over the
past few months, we have observed there are certain sludges which are hampering the overall mortgage industry of Pakistan. So we need to understand one more thing, that it is an evolving sector, because the mortgages were not a preferred way of loan for the customer, as well as not the banks were not much more into it. However, I have some suggestions and observation on the report, which I would like to address point-wise. I've seen that the gathering of information, the time shown, I'll take point to point. The gathering of information, all the information are available on the websites of all the banks, because this is a product designed by State Bank with the help of all peer banks, and all the documentation are standardized, and they really mean to promote this product. So all the documents is available on all banks' website, and the customer can access any information. Even they can download the application form from the website. So they don't need to visit the bank. However, we also need to understand that these are the new customers who were not into banking a lot, and they, on their own will, if they want to visit the bank, so they can do. Secondly, the photo requirements is not a mandatory requirement. The photographs are required on case-to-case basis, where the customer's signature is not very mature. So their bank can ask for a photograph, but normally it's not a mandatory requirement. Same way, the references signatures are not required on the application form. You only need to provide the name details of the applicants. And the copy of CNIC, there's only requirement for copy of CNIC. It's not the attested copy. It is done, original seen by the bank staff, as in order to avoid any sort of fraudulent activity or wrong application. So if it's the genuine customer who's applying, so they need to see the original ID card, and that's it. So they don't need an attested copy of ID card. Moreover, banks are not demanding the utility bills, and neither the rent agreements, and NADRA verification, like it is also not a requirement. Banks have their own biometric devices to verify the customer's biometric, and that is done at the time of once the loan is approved or they're opening an account. So it is not a requirement for at the time of loan application. And the turnaround time, because State Bank is extremely concerned about this product, as this is again a new segment, and they want banks to facilitate the customers. They have given their complaint center number. The customer can complain, and banks are prominently placing the State Bank's website and all the mediums from where the customer can give complaints. So and the bank has to resolve the complaints within a very thin timeline. So I don't think that the loans approvals are delayed initially. However, the main problem banks are facing, or the customers are facing, with our past experiences regarding the identification of properties and the documentation related to the properties. First, we talk about the identification of properties. The properties which the customer of this segment prefer are expected to be low-cost properties. But if we just look around Islamabad, the properties documentation are comparatively much better than the rest of the country, but you cannot find a cheap property in Islamabad. So for low-priced properties, you have to get out of Islamabad, you have to get out of metropolitan areas, and there we have more and more property-related issues. I would like to share another experience that banks initially started. The customers were not having the identified properties, but they applied for the loans. So bank approves agreement in principles, where they told them that we can approve this much of amount against your income and age criteria. But out of those, let's assume 100 customers, only 10% came back with the properties that suited their requirement. So this is a bigger problem. And at the same time,
there is a cumbersome and lengthy process of completing the documentation, because its bank has to cover its risk, and at the same time we need to have our effective mortgage on the property. So if we do not have appropriate documents, so we cannot proceed with the transaction. Dr. Nadeem, sir, please unmute yourself, sir. फराज साहब, मुझे ये बताइए कि you agree it takes 4 months to get a mortgage and even more. To create a mortgage, if the document is appropriate, it can be done. Or like the approval time for any application is 30 days, and this is advised by the State Bank. And any delay, and I would like to add one more thing. Like normally the customer gets from our bank, the customer gets an SMS once he applied for the application, and he is getting updates regarding his application, and he can call our call center to have an update, or there's any discrepancy, the relevant teams contact him, or he receives an information and he can do that. And the approval time, Approval time is 30 days. Sorry, Approval time is 30 days. yeah, Minimum. it's 30. Minimum. Yeah. Okay, yeah. great. Okay, thank you. Faisal Jamal Saab, Director Matracon. I'm sure you're building large buildings. So does it take you that long to get permission? And I'm surprised that even today, despite the Prime Minister saying there should be high rises, I see no high rises being built in Pakistan. The demand for tower cranes I've checked hasn't gone up. So Faisal Saab, can you please tell me whose fault is it, yours or the government's? Faisal Jamal Saab, Director Matracon. Sir Faisal, sir, please unmute yourself, sir. Ji Faisal Saab. Yes, can you hear me now? We can hear you. Can you switch on your camera too so people can see you too? That will be lovely. Please, please. Thank you. जी बोलिए. We are basically from the contractor side, and we are constructing these high-rise buildings. And generally, problem which we face in getting the approvals, firstly from the authority for the you can say first of all getting permissions for camping facilities, and then the approval of the all maps and all design from the relevant authorities like CDA. In our case, similarly from civil aviation and from other security agencies which are mandatory for approval from CDA. So a lot of time is wasted and in unnecessary documentations, especially for which are mandatory for submission in CDA. We have to get some height restrictions approval from civil aviation and air headquarters. These are the two basic requirements which we have to submit to CDA first for the approval of our submitted design of structures and other related architecture and firefighting designs. So a lot of time is required to meet all these requirements to submit the necessary documents to CDA. There are some you can say mandatory requirements that CDA has set. This is not only the design from the designers or consultants, but there are some relative approvals which are required from these departments. And
normally the time taken from these departments cannot be explained in one meeting or in one. What is the reason of getting these approvals in such a long time? Maybe this approval can be taken in most of the cases in 1 week or 10 days, but normally it takes months and months, especially from civil aviation and from air headquarters. And then we came to justify our design in CDA, and they have set up a bylaws, and all the contractors and consultant have to follow those bylaws. And if your submission is according to the bylaws, then there is no problem in getting approval from CDA. But normally their DVC and their these meetings took a very long time. Maybe after 3 or 4 months, they call a DVC in which 5 or 10 or 12 projects are simultaneously taken for approval, and some of them are passed and some of them are returned with some observation if they feel there are some problem in that. So definitely these all time restrictions, if they are properly addressed, then this time period for these approvals can be reduced, especially in CDA and in civil aviation. If these two time for the approvals are contained, then definitely everybody from constructor and even from the employer side, they will feel a better experience of that project. वेरी गुड। ये फैसल साहब जरा बताइए, आप माशाल्लाह यू आर अ बिल्डर, कितनी बिल्डिंग्स आप इस वक्त बना रहे हैं? इस वक्त ब्लू एरिया में हम एक टावर है, 20 टोटल 30 स्टोरीज है, जिसमें 6 बेसमेंट्स हैं और 24 स्टोरीज ऑन टॉप पे हैं। ये ब्लू एरिया मेन 58 नंबर प्लॉट है, उस पे हम बना रहे हैं। ये BF टावर के नाम से है, बेनवलेंट फंड टावर के नाम से। ये आपने शुरू कब किया था? ये हमने शुरू किया था 2017 अक्टूबर 1 नवंबर। और ये मतलब बिल्डिंग शुरू की थी? जी, ये बिल्डिंग की जो हमें दी गई थी ना कमेंसमेंट लेटर, वो दिया गया था 2017 1 नवंबर को। और आपने अप्लाई कब किया था? एक्चुअली देखें, ये अप्लाई हमारे स्कोप में नहीं था। ये हमारा एम्प्लॉयर जो है वो बेनवलेंट फंड भी, ठीक है, उन्होंने कितनी देर लगी थी परमिशन? वो बेचारे 2012 से ये डिजाइन हुआ है और उधर से ये अप्लाई हुआ था 2012 से, और 2017 में जाके इसकी क्लियरेंस हुई है। 5 साल में ये शुरू हुआ, 5 साल में शुरू हुआ और आपको बनाते बनाते 4 साल लग गया। आपको क्यों इतनी देर लगी? अभी इस वक्त हम इसमें असल में थोड़ा सा ये टिपिकल स्ट्रक्चर था इसका। इसमें 6 बेसमेंट हैं। अभी तक इस्लामाबाद में 6 बेसमेंट की बिल्डिंग जो है ना वो बनी नहीं है, जिसमें 3 अगर यही बिल्डिंग दुबई में बन रही होती या वलायत में बन रही होती, कितनी देर लेती? मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम 24 से 30 मंथ्स में बन जाती। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये जो इतना स्लो काम है, इंजीनियर खिजर हयात जी, इंजीनियर खिजर हयात से पूछते हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, जी जी इंजीनियर साहब बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, बीइंग द कंसल्टेंट। जो हमारा एक्सपीरियंस है विद द डिपार्टमेंट्स, उसमें मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके जो स्टूडेंट हैं उनको दी है, लेकिन छोटा सा मैं आपका टाइम लूँगा, उसमें ये बता दूँगा कि हमने
मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की बिल्डिंग के लिए प्लान जो थे CDA में जमा कराए थे 2000 जनवरी 2014 में, और उसके प्रोसेस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। तो हमें अक्टूबर 2016 में 3 साल में हमें वो IFC की एक सिंगल छोटी सी बिल्डिंग है 1 लाख स्क्वायर फीट की, इट टुक 3 years टू गो थ्रू। अच्छा, इसमें जो देखने में आया है वो ये है कि रिस्पांस फ्रॉम द अथॉरिटीज जो है वो बहुत ही स्लो है, बल्कि नेग्लिजिबल है। मैं कहूँगा कि जब तक कि आप पर्सन खुद कोशिश नहीं करेगा, परसू नहीं करेगा और जाएगा कई दफ़ा, उसके बगैर वो काम नहीं होता। और नई से नई चीज़ जो है, एवरी टाइम यू विल रिसीव ए न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अब ये करके लाएं, वो करके लाएं, रूल चेंज हो जाएंगे कि जी अब रूल इस तरह हो गए हैं। तो रिस्पांस जो है ना जी, वो पब्लिक ऑफिस का जो है वो मैंने आपको बताया कि वो तो ये है कि उधर से कभी जवाब नहीं आपको आएगा, ऐसे जैसे कुएं में आपने कोई दरखास्त डाल दी है, लेकिन उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो अब कितनी को बंदा भाग दौड़ करे, उसकी अपनी कास्ट है। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर प्लान्स का PC1 बन गया, अप्रूव हो गया, और जब आप कंस्ट्रक्शन करने लगे तो अप्रूवल की जरूरत पड़ गई, अप्रूवल में लग गया जी 3 साल लग गए, तो जो उस वक्त कास्ट थी PC1 की, उसके ओवररन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं टू फेस द क्लाइंट बाय द कंसल्टेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर हमारी इतनी पोजीशन वीक हो जाती है। कहते हैं जी आपने क्या एस्टीमेट बनाए थे, आपने तो ये प्राइसेस जो दी थी ये तो बहुत ज्यादा कास्ट होगी, ये आपने टेंडर जो है आया है और जो आपने कास्ट दी थी उसमें इतनी ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। तो सबसे हमें ज्यादा जो डिफिकल्टी इसमें आती है कि डिले अप्रूवल होगी, कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयर की कास्ट बढ़ जाएगी और किसी को उसका फायदा नहीं है। अगर कास्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की तो फायदा किसी को, ना तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई फायदा है, ना को क्लाइंट को फायदा है। डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए कि वो अपने इस प्रोसेस को शॉर्टन करें, तो उस मुल्क का पैसा बचाएं। तो पहले ही हमारे हालात इतने वीक हैं, तो ये है हमारा मसला, ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट का भी बड़ा टाइम वहाँ लगता है। डेफिनेटली वो जो हमारा एविएशन है, सिविल एविएशन का मसला है, या एनवायरनमेंट की डिस्कस नहीं हुआ, उसकी मैंने पूरा टाइमिंग बताया था कि हमारी पाइड की बिल्डिंग के इन्वायरमेंट रिपोर्ट को हासिल करने के लिए मुझे करीबन 1.5 साल लगा। तो अब ये ऐसा है कि हम तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई उस तरह के रिलेशन नहीं है, लेकिन सारे काम हम गवर्नमेंट से अप्रूव कराने होते हैं। और पहले यही CDA था कि ना ही, मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्वाइन की 1966 और 1970 बल्कि आप समझ लें कि 80 तक ये प्लान्स ऐसे होते थे कि एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहाँ W शेख साहब होते थे चेयरमैन, उन्हें खास इंस्ट्रक्शन थी। तो कई बार तो ये होता था कि हम प्लान्स लेने नहीं गए अप्रूव प्लान, तो वो जो ऑफिसर होते थे वो सम टाइम पूरी के बंडल उठा के नक्शों के, यार तुम लोग आए नहीं है, ये तुम्हारे नक्शे सारे अप्रूव हुए हैं तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू करें। लेकिन वो वाले अफसर खत्म हो गए हैं कि जो किसी को पूछते थे कि भाई तुम्हारे पास आज काम आया था, कितने दिन में तुमने करना था और कितने दिन लग गए। किसी को कोई पूछने वाला नहीं है ना। अब जब तक कि आप पूछेंगे नहीं या उनमें एहसास नहीं देंगे कि ये मुल्क जो है किस तरह आप लोगों ने हासिल किया था, और ये जो काम आप करेंगे अगर मुल्क के लिए नुकसान बचाएंगे तो आपका अपना नुकसान है, अपने बच्चों का नुकसान है। हमारे उस्तादों ने जो पढ़ाया था कि जो बिल्डिंग आप बनाएंगे ये मुल्क की बिल्डिंग होगी, इसलिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो दैट शुड स्टे, और अपनी ईमानदारी से काम करना है और डिसऑनेस्टी नहीं करनी। ये हमारे मियाँ, मेरे उस्ताद थे, वाइस प्रिंसिपल थे मियाँ रफीक साहब, जो कि CDA में रहे, जिन्होंने फैसल मस्जिद बनाई। वो हमारे इस तरह के उस्ताद थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी प्रोफेशन में लगा दी और सारी जिंदगी ऑनेस्टी से गुजारी, कोई वहाँ प्लाजा इन्होंने नहीं खड़ी की है। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई तरीका अख्तियार करें उस्ताद, कोई इनको बताएं कि किस तरीके से ये मुल्क के अंदर जो लोग हम हैं अपने आप को किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं और इस्लाम की बताए हुए रास्तों पे हम किस तरह चल सकते हैं। हर आदमी जिसके पास जाते हैं तो वो तो ऐसे बैठा होता है जैसा कि उसको कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, वैसे बैठा हुआ है, उसको पूछते हैं फाइल नहीं गुम जाती। जस्ट टू फाइंड आउट फाइल, एक दफा फाइल के लिए चेयरमैन साहब तक अप्रोच की गई तो वो 5 दिन तक फाइल नहीं मिली, फाइल गुम गई।
तो अब मैं क्या बताऊं आपको, ये मैं तो अब तो बहुत ही परेशान है इस सिलसिले में। कहीं अगर खत लिखते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में भी खत लिखते हैं, उसका खत का जवाब नहीं आता, लेकिन जब उन्होंने अपना काम करवाना होता है तो वो लेटर पे लेटर लिखने शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम कोई कहेंगे कि भाई हमें कोई पेमेंट कर दें, हमारी कोई क्लियरेंस कर दें, वो बिल्कुल जो है वो हमें कोई वो पूछने वाला नहीं होता। ओके, सिर्फ साहब, वन ये प्लेस नहीं है, बताइए- कई जगह मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट दैट, क्योंकि आप तो उस्ताद हैं सर, आप लोग कोई इस तरह के अपने हायर अथॉरिटीज में अप्रोच करें और कोई तरीका कार इख्तियार करें, कोई पूछने वाला जरूर हो किसी का हर डिपार्टमेंट में, और रिपोर्ट दे, वीकली रिपोर्ट दिए जाए। हम तो सिविल वर्क, हम पब्लिक में काम करते अगला पूछते हैं कि शाम को कभी आपने क्या किया दिन में। तो गवर्नमेंट के ऑफिस में जो है, यहाँ जो भी अथॉरिटीज हैं, उसमें कोई ना कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना। कोई रिपोर्ट सबमिट करे अपने महीने की, ठीक जी। कोई इस तरीके से कोई काम हो तो बहरहाल है खिजर आप साहब, लोग मैं ज्यादा एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू खिजर साहब, आपसे सवाल पूछ लूं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये बताइए कि आपकी क्या हो रहा है यार, भूल जा रही है आपका जो है, वेयर इज दिस यार, डॉक्टर नदीम सर, आपके पास कोई और डिवाइस तो नहीं कनेक्ट? क्या करें? इको आ रही है आपकी तरफ से सर, कोई और डिवाइस तो इसी नेटवर्क से नहीं इनको आ रही है, कनेक्ट? मुझे पता है क्यों आ रही है। ओके, चलिए मुझे पता चल गया। हाँ जी, इज दिस बेटर? ये सर, अच्छा जी, देखिए मैं ये पूछ रहा था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये कि कंस्ट्रक्शन इज द न्यू वे फॉरवर्ड, कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया। कितनी बिल्डिंगें शुरू हुई हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है? नबील साहब, एको क्यों? वो पहले जो कि HEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास हैं, और वो काफी देर से, मतलब 2016 में PC1 पास हुआ, 2018 में टेंडर हो गए या 17 में हो गए। और इसी तरीके सिंध में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहरान यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं काम, वोमन यूनिवर्सिटी सखर करार बना रहे हैं अभी, और सकरंड में बना रहे हैं एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट। लेकिन ये जितने भी हैं फंड्स हैं फ्रॉम HEC, उसकी भी HEC से जो फंड्स रिलीज होते हैं, वो भी 3-3 महीने 4-4 महीने जब लग जाते हैं तो कंट्रैक्टर के काम बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फिर सर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज था वो तो प्राइवेट सेक्टर का था ना। प्राइवेट सेक्टर में क्या कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है कि नहीं हुई? हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आप देखिए, जैसे 18 में काम हो रहा है, या फिर और लोग जो डेवलपर जो हैं वो अपने अपने काम वो कर रहे हैं। किसी ज़माने में हमने शबस्तान सिनेमा डिज़ाइन किया था, तो वो उन्होंने कराया है इसी पैकेज के थ्रू। उसके हमने प्लान्स अभी बनाए हैं, वो देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर अप्रूवल फ्रॉम RDA। तो RDA में प्लान्स हमने पिछले दिसंबर में जमा कराए थे। तो ये पब्लिक सेक्टर जो है, ज़्यादातर सर हम ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर के काम हैं। अब यस, यू कैन से कि 95% काम जो हम करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के और गवर्नमेंट के पहले किया करते थे। आजकल तो गवर्नमेंट का कोई अपना काम, पब्लिक सेक्टर का कोई काम ऐसे नहीं, उस तरह के नहीं है। और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर का काम बढ़ा है? प्राइवेट सेक्टर का नहीं है इस वक्त, हम कोई प्राइवेट सेक्टर का काम कोई नहीं नहीं कर है। रहे। चलिए फिर फैसल साहब से जी पूछते हैं। सर। फैसल साहब, आपके पास कुछ है? फैसल जमाल साहब, फैसल साहब, Director सर Metro काइंडली Call. अनम्यूट योरसेल्फ सर। फैसल साहब, अनम्यूट योरसेल्फ। सर फैसल सर काइंडली अनम्यूट कर लें अपने आप को सर। जी मैंने फैसल अनम्यूट साहब। कर लिया जी। हाँ जी, बताइए, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू हुआ है? जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी आपको मराहत दी है, इतना कुछ दिया है, और ब्यूरोक्रेट्स तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल्कुल ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च वैसे भी हो रहे थे, और उनको अब इस प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत उनको अडॉप्ट किया गया है। और आप ब्लू एरिया देख सकते हैं, ब्लू एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। इसी तरह जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह ये 18 बन गई है, टॉप सिटी में है, जिस भी सोसाइटी में DHA में कुछ शुरू हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स,
कुछ अंडर अप्रूवल हैं, कुछ अभी शुरू हो गए हैं, कुछ बैरिया टाउन ने शुरू किए हैं, और ये सारे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ये जा रहे हैं। और उसमें कुछ टैक्सेशन की और बाकी अपने जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें इस इन्वेस्टमेंट की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेफिनेटली जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, तो ये दोनों में काम हो रहा है। और इन द टाइम टू कम ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर और आ जाएंगे, क्योंकि इसकी एक डेड लाइन दी गई है कि इस प्रोजेक्ट को भी हमने कंप्लीट भी जून 2023 से पहले जो करेंगे वही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे इस एमएनएसपी से। तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त पब्लिक इसमें आ चुके हैं। क्या टावर क्रेन्स लग गए इस मुल्क में? आपके पास कितने टावर क्रेन्स है मेट्रोकॉन साहब? जी आपके पास टावर क्रेन कोई है? जी, हम इस वक्त हमारे पास 4 टावर क्रेन्स हैं और 2 इस वक्त हमारी लगी हुई हैं, और हमारा अपना भी इस प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव के तहत एक अपना प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा अंडर अप्रूवल है इस वक्त सीडीए में। और वो बिल्कुल कितनी देर से अंडर अप्रूवल है? जी, कितनी देर से अंडर अप्रूवल है? ये अप्रूवल के लिए तो तकरीबन हमें हो गए 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए। अच्छा, ज्यादा हो गए, ठीक है। और आपके पास 2 टावर क्रेन खाली पड़े? जी, 2 टावर क्रेन हमारी पड़े हुए। अच्छा, और बाकी आप कितने जानते हैं इस्लामाबाद में कितने टावर क्रेन होंगे टोटल? टावर क्रेन तो जो भी अच्छी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है, उनके पास 2-4 टावर क्रेन होती हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्टर के पास ना एट एवरी टाइम सारी टावर क्रेन्स जो होती हैं ना वो ऑक्यूपाइड नहीं होती, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कभी एक हाथ में होता है, कभी 2 हाथ में होते हैं। तो लेकिन ये है कि कई दफ़ा जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे भी इसी तरह किसी वक्त ज़्यादा थे तो हमने ज़्यादा बना ली, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास। आप टावर क्रेन ओन करते हैं, रेंट नहीं करते? नहीं, रेंट नहीं करते सर। ये क्यों ऐसा रेंट नहीं आइटम है, ये रेंट नहीं होता सर। रेंट में ये ख़राब हो जाता है और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि ये जब तक 3-4 प्रोजेक्ट यूज़ न करे ना, तब तक इसकी कॉस्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं होती, किसी एक प्रोजेक्ट पे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया में तो रेंट करते हैं टावर क्रेन, आप लोग क्यों ओन करते हैं? यहाँ पे सर इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पे रेंट आउट नहीं की जा सकती। फिर जो रेंट पे जो आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है ना, वो उसकी उस तरह केयर नहीं करता। जितना ये महंगा इक्विपमेंट है उस हिसाब से इसकी मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोर तो रेज योर हैंड्स। बाकी मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री मुझे तो लग रहा है बहुत सुस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि कोई नजर तो कुछ नहीं आ रहा बिल्डिंग में। तो ब्लू एरिया में 2 बिल्डिंगें नजर आती हैं, और बाकी टावर क्रेन और डीएचओ तो मैं काउंट ही नहीं करता, इतनी दूर है, वहां जाता कौन है? तो अगर वहां जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा है? तो मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या बिल्डिंग हमारी इंडस्ट्री है। जी मोहम्मद रिजवान साहब बताइए। थैंक यू नदीम साहब। अच्छा, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, 12 साल से इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। तो अप्रूवल के लिए एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है तो पुराना कॉन्सेप्ट सेल्फ सर्टिफाइड। तो उसमें आप इंजीनियरिंग काउंसिल है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, ये स्टेप अप कर सकते हैं। जो वेल रिनोन्ड कंसल्टेंट्स हैं या डिजाइनर्स हैं, जिस तरह प्राइवेट डेवलपमेंट में जो बिल्डिंग्स बनती, एग्जांपल बैरिया टाउन है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती अप्रूवल के लिए। वो कंसल्टेंट डिजाइन करता है, बैरिया में सबमिट करता है, वो फटाफट रिव्यू होके अप्रूव होके आ जाती है। तो ये अगर सेल्फ सर्टिफाइड को हम अगर पुश करें पीईसी के थ्रू या ईडीबी के थ्रू, तो इससे ये टाइम हमारा सेव हो सकता है काफी। ये प्रोसेस क्या है, सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या, जरा बताइए। इसमें ये होता है कि मैं अगर बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ, जैसे कराची में बिलाल एंड मुश्ताक, अच्छा उसमें ये है कि कंसल्टेंट बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लम्बिंग एमईपी अलग होता है। तो अगर एक कंसल्टेंट सारी चीजें करता है, वो सर्टिफाई कर दे कि मैं इस डिजाइन को ओन करता हूँ, ये सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन हुआ है और हर चीज जो है ना इसमें फ्लॉलेस है या एज पर स्टैंडर्ड है, तो उस कंसल्टेंट की रेप्यूटेशन है, वो मार्केट में 25-30 साल से बैठा है, उसने कहीं भागना नहीं है। उसके जितने भी 50-100 इंजीनियर्स आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड हैं पीईसी है, जो भी उनकी काउंसिल है उनके पास, वो सर्टिफाई कर दे अगर कि ये भी सारे चेक्स के थ्रू गुजर के जो है ना मैं इसको ओके कर रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत है 3 साल उसको रिव्यू करने की।
इसी तरह जो दूसरी चीज है, जिस तरह सिविल एविएशन है या एनवायरमेंटल की अप्रूवल है, अब एक बिल्डिंग के लिए जब आपकी प्लानिंग होती है, जैसे न्यू ब्लू एरिया है, वो डिसाइड हो गया यहाँ हाई राइज बननी है, तो उसको एक स्टेप में पूरे एरिया की अप्रूवल कर दें आप। अब अलग अलग बिल्डिंग के लिए अगर आपने करना है तो वो कंस्ट्रक्शन के पैरेलल भी सारी चीजें हो सकती हैं, उसको एक मैक्रो अप्रूवल कर दें पूरे एरिया की आप, कि भाई इस एरिया में बनने हाई राइज, फिर अब बार बार क्या उसको जरूरत है कॉन्ट्रैक्टर को जाने की। रिजवान साहब, ये दुनिया में प्रैक्टिस होता है? रिजवान साहब चले गए। अच्छा, मेहताब हैदर साहब बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ ये होता है प्रैक्टिस, सेल्फ सर्टिफाइड मैंने किया है बाहर काम। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सर कैन आई स्पीक? प्लीज डी गो अहेड। सर ये जो पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, इसकी टोटल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, और ये स्लेजेस की आपने बात की है, ये कॉस्ट को अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारी कॉस्ट में कितना इजाफा करती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? अगर ये स्लेजेस ना हो तो हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी कम हो सकती है? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अभी वकार को बुलाते हैं। खिजर साहब, खिजर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये जो भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त बन रहे हैं उनके जो लास्टली जो डिफिकल्टीज हैं सर, वो मैं जरा बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सर्विसेज कनेक्शंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, सुई गैस का, और बाकी जो भी सर्विस रोड्स हैं या अप्रोचेज हैं, वो ऐसा है कि वो भी इसमें पॉइंट रखा जाए कि बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन अब वो अगर वो सर्विसेज पे नहीं कनेक्शन मिल रहा तो वो तो बिल्डिंग आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, एक जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो सीडीए से लेना होता है कि आपको पाई करने से पहले आपको वहां से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है। उसके जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि अभी हमने 4 महीने हो गए जमा कराया हुआ है, लेकिन उनको नो रिस्पांस। आदमी हमारा जाता है, उनका मिनिस्ट्री का आदमी जा रहा है और वो आ रहा है, लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ भाई आप ले लें फिर, क्योंकि बिल्डिंग मुकम्मल होगी, ऑलमोस्ट 99% बिल्डिंग मुकम्मल है। लेकिन लकीली हमने वहाँ कोई 2 साल पहले से परसू करना शुरू किया था, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कोई 5 महीने पहले मिल गया, 4 महीने पहले। अब यह है कि वाटर के कनेक्शन के सिलसिले में यह कहता है कि वो 2017 में अप्लाई किया था वाटर कनेक्शन फ्रॉम सीडीए, लेकिन सीडीए ने कोई कनेक्शन नहीं दिया, बल्कि उल्टा वो उनकी बिल्डिंग जो उसमें आग लगी थी, गिरा, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि जी ये सारे प्लाट का जो है 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा है कि जी पानी का बिल है आपका। तो वो परेशान होकर बैठे हुए हैं वो लोग, उनके पीडी साहब जो हैं। तो ये मैं इसमें रिक्वेस्ट करनी थी कि ये भी शामिल कर ले कि बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करने से पहले जो अप्रूवल्स और यूटिलिटी कनेक्शंस, उसका भी सर्वे अगर शामिल कर लिया जाए तो और ज्यादा सहूलत मिलेगी। वेरी गुड पॉइंट। जी वकार साहब, आप बताएंगे जरा कि क्या ये जो इन्होंने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की। एग्जैक्टली सर, वेरी गुड पॉइंट रेज बाय मेहताब हैदर। अभी जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आइडेंटिफिकेशन करना। जो हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स करेंगे उसमें डेफिनेटली हम इस एंगल से भी एनालिसिस करेंगे कि हाउ मच कास्ट वी कैन रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द स्लज। इसमें अभी हमारा रफ एस्टिमेट ये है कि जैसे हाई राइज में इट कास्ट अराउंड 2 मिलियन, तो अगर हम स्लज रिमूव करते हैं तो इट विल बी कट द कास्ट बाय 50%। सो नेक्स्ट रिपोर्ट्स में हम इस एंगल से भी करेंगे। अभी तो इनिशियली हमें जस्ट पिन डाउन करना था। डेफिनेटली हम अपना जो एनालिसिस का दायराकार है वो वसी करते जाएंगे विद कमेंट्स, तो वी विल इनकॉर्पोरेट दिस कमेंट इन द कमिंग रिपोर्ट्स। Any last words ji from the panel? Anybody wants to say anything? Faisal साहब, खिजर साहब। वेल जो मेहताब साहब कह रहे हैं सर, वो ऑफ कोर्स कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, जैसे कि खिजर साहब ने कहा कि कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं। तो अगर 3 साल अगर बिल्डिंग डिले हो जाती है तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, कि जो लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, जो मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो उससे कॉस्ट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक, जब्बार साहब, इंजीनियर जब्बार साहब।
Dr. Gupar. Thank you very much, Dr. Nadeem. Very happy to see you here. मैं तो समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस के इश्यूज और करप्शन को कौन जानता है. सिंपल एक बात करना चाहूँगा मैं vis-a-vis the financial and monetary proposition of the State Bank of Pakistan. करें इसको, यानी मिनिमम एज ए मैक्सिमम भी रखना है तो 3% से ज़्यादा ना रखें इस मार्कअप को. 5% पे कौन आ रहा है? 3 मिलियन के अंदर ज़मीन नहीं मिलती, 3 मिलियन की फाइनेंसिंग की बात करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के हवाले से. तो हम फेडरेशन में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे कि ये वायबल ही नहीं है, सूटेबल नहीं है. इनका पूरा जो प्लान है ये पॉलिटिकल ज्यादा लगता है और सब्सटेंटिव नहीं है प्रोपोजिशन के. पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर और लाहौर से लेकर कोयटा तक जो है कोई गरीब को, लो इनकम ग्रुप को कोई मकानात मिल जाएं. एज फार एज दी कमर्शियल टावर्स आर कंसर्न, वो तो प्रोपोजिशन है, वो तो जाहिर है कि बिल्डिंग लेनी है, अगर सरकारी जमीन पर बनानी है तो बिल्डर बना लेता है, वो भी करप्शन की कॉस्ट पे करता है, नॉट लेस देन 30 to 40%. जैसे अभी सदर साहब बता रहे थे, मिनिस्ट्री तो जवाब ही नहीं देती है. और वहां तो जाहिर है कि इस्लामाबाद तो यानी पॉलिटिकल वडेरों का शहर है. दे आर लीस्ट कंसर्न के पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, और यानी इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही है इससे. एक 2.5 साल का एक रिजीम है जिसमें चौथा फाइनेंस मिनिस्टर हम देख रहे हैं, एंड ही इज आल्सो अ बैंकर, ही इज नॉट इकोनॉमिस्ट. तो मैं तो चाहूंगा, दुआ भी करूंगा कि अगर हायर एजुकेशन का मसला हो, डॉक्टर नदीम साहब आप जाएं वहां पे और करें. वी शुड डेवलप अ टीम और HEC के प्रोजेक्ट्स लेकर चले. और बाकी देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन. एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न, पुअर और लो इनकम ग्रुप के लिए डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि इनको रिविजिट करना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा प्लान. और ये जो इन्होंने ज़ैगम रिजवी से या किसी से भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कंसल्टेंसी दी है, जो भी किया है, प्रैक्टिकल नहीं है. ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल सिटिंग इन द सेक्रेटेरिएट. और वो जिस तरह विजुअलाइज कर रहे हैं कि जी हम लोगों को 50 लाख घर दे देंगे, मुझे नहीं लगता. और आप देखिए इस वक्त सरिया कहाँ पहुंचा हुआ है, सीमेंट कहाँ पहुंची हुई है, एक साथ एक्सपोर्ट भी आपने अलाउ किया हुआ है. तो समझ में नहीं आता. इट्स अ कंट्रडिक्शन विद इन दी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी. तो इसको रिविजिट करना चाहिए और एक नई टास्क फोर्स बनाए, उसमें ट्रूली कंसल्टेंट्स, बिल्डर्स, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर्स, स्पाइट एक टीम बनाई जाए. वो ऐसी टीम ना हो जो उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम बनाई थी और फियास्को बन गया वो टोटल. तो मैं समझता हूँ फेडरेशन की नुमाइंदगी हो उसमें, हायर एजुकेशन के सेक्टर की नुमाइंदगी हो उसमें, रिसर्चर्स हो उसमें, बिल्डर्स हो, कंसल्टेंट्स हो. CDA की जो हालत है सर, वो इस्लामाबाद वाले, मैं भी चूंकि इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, I'm here in Karachi for some few research projects. तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि हर जगह पर LDA, CDA, MDA, KDA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज. सर सिर्फ कराची का केस ले ले, यहाँ पे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड गिवन नेम ऑफ द सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी. और उसका जो चीफ था मंजूर काका, वो और जो मिनिस्टर हैं उन पर नैब के अंदर करप्शन के केसेस चल रहे हैं. बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के केसेस है सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. और प्राइवेट सेक्टर के पास माजरत के साथ वो बेचारे क्या करें, हर फाइल के साथ उनको बकौल मलिक रियाज के जी पहिए लाने पैदे रहे. अब वो पहिए लाने पहनेंगे तो फिर काम बने. अच्छा वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जाएगा. बिजनेसमैन या इन्वेस्टर तो अपनी जेब से नहीं देगा, उसने तो मार्कअप भी देना है. और जो मार्कअप इनएफिशिएंसी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देना है वो अलग है. तो 30-40% if it is a project of say around 1000 million तो इसको 1400 million बना दिया जाए, वो 400 मिलियन तो लोगों के पेटों में जाना है. तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी जो आपके वेबिनार में मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स इस पर बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. जी उस्मान उमर गिलानी साहब, उमर गिलानी, unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. This was a very informative seminar, and I am a lawyer and I practice in the areas of real estate and construction law, and I also represent the Pakistan Engineering Council as their official council. And जो one of the colleagues here who is a civil engineer, उनका जो idea था, I think that is a very interesting and positive idea. कि one way to move forward would be in a way to shift the burden of approval of building plans
from city authorities to consultants themselves. और इस हवाले से अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अप्रोच करें कि उनके कोई बाय लॉज में एक अमेंडमेंट्स करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि certain approved and highly qualified consultants at least should be able to get building plans approved through a self-approving model, a self-regulatory model. So that's a way forward, and I learned a lot from this seminar otherwise. खदीजातुल गुबरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पाइड में पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट हूँ और उससे पहले मैंने यहाँ पे केडीए और एचडीए में काम किया एज एन आर्किटेक्ट। ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि मतलब अप्रूवल की बात हो रही है, मगर मेरा एक कंसर्न ये भी है कि जो प्लान्स होते हैं लाइक अप्रूव होते हैं वो एज इट इज ऑन द ग्राउंड नहीं कंस्ट्रक्ट होते। जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उनके लिए एक अलग प्लान बनता है और इस चीज की एक अलग कॉस्ट होती है जो बाद में आके केडीए और एचडीए इंक्रोचमेंट के बेस पे उसको हटा रहे होते हैं, या आपके जो लाइक वेंटिलेशन और दूसरे ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं, या कहीं पे आपका मटेरियल अच्छा नहीं यूज हुआ इन चीजों की इंस्पेक्शन नहीं होती है और इसकी भी एक बहुत हाई कॉस्ट होती है जिसपे लोग बहुत कम उस पे लाइक आवाज रेस करते हैं, या मतलब क्योंकि ये पार्ट है सिस्टम का। गुड पॉइंट अय्याज साहब। वर्किंग इन प्राइड सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 3 मुख्तलिफ ले लें, एक ले लें सीडीए, एक ले लें डीएचए जो डीएचए सोसाइटी है नेबल है, एक फोर्स है, और तीसरा प्राइवेट। तीनों देख लें और टाइम ड्यूरेशन देख लें अप्रूवल का, इन तीनों में कितना टाइम लगता है और कितने अप्रूवल की कॉस्ट पड़ती है। तो तीनों है तो पाकिस्तान में, तो अगर जहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरा भी उनको फॉलो करने की कोशिश करें। थैंक यू। Thank you very much ji। अच्छा जी, I think this has been a great webinar, great beginning to the sludge series। I think congratulations Idris and Waqar, we begun the PIDE sludge series। Expect more from us every month। We will be doing sludge analysis for every sector of the economy and we will make it a mainstream in PIDE, and inshallah we'll build up an encyclopedia of sludge, of the regulations that are stifling us। जो regulations हमें बिल्कुल जिंदा तबाह कर रही हैं, कला घूंटा हुआ इकोनॉमी का बेड़ागर किया हुआ है, उसको हम बार बार आपके सामने रखेंगे, बार बार आपके सामने लेके आएंगे और देखेंगे आप क्या कहते हैं। अभी किसी बिल्डर ने हाथ खड़ा किया था, कौन है जी, बोले कौन से बिल्डर ने हाथ खड़ा किया था अभी? सिंपल प्रॉपर्टी मैम बोले जी, बोले। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी सीरीज का आगाज आप लोगों ने किया और जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है सो फार माशाल्लाह बहुत रेलेवेंट है। मेरा ताल्लुक बैरिया टाउन के साथ है और बैरिया टाउन के साथ हम पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। बैरिया टाउन के अभी जो सीडीए के और जो अप्रूवल के मसाइल के ऊपर बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन से हमें इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, अदारों को सीखना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम अपने अंदर रखा हुआ है कि अप्रूवल किस तरह से फास्ट पेस पे होती हैं और उस अप्रूवल से हट के किसी किस्म का काम भी नहीं होता, नहीं होने देते। इनके जो इंजीनियर्स हैं और इनके जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि एनओसीज के ऊपर इनिशियली डॉक्टर साहब ने बात को इनिशिएट किया था। हमारे यहाँ एनओसीज जो है ये तो सॉरी टू से मतलब ये तो कमाने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो मतलब अभी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज न्यू एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी आ रही हैं, लोग बगैर एनओसी के मार्केट करके अरबों रुपए मार्केट से उठा लेते हैं। जब उठा लेते हैं, उठा लेने के बाद फिर गवर्नमेंट को याद आती है कि हमने इस प्रोजेक्ट को बंद करना है, वो बंद कर देते हैं, पब्लिक मनी भी बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट भी बंद हो जाता है। सो पहले से कोई ऐसा सिस्टम, कुछ चीजें मौजूद नहीं है। इसमें 2 चीजें मैंने देखी हैं डॉक्टर साहब कि एक तो कुछ लोग होते ही मतलब उनकी नीयत ही ठीक नहीं होती काम करने की, तो वो गवर्नमेंट के अदारों के साथ कोऑपरेट नहीं करते या वहां जाते नहीं है, बस इधर ही कुछ ना कुछ हाथ मिला के इधर उधर अपने पैसा किसी तरीके से पब्लिक मनी इकट्ठा कर लेते हैं।
कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कानूनी तौर पर चीजों को ठीक तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें साल गुजर जाते हैं, उनके पास जमीनें मौजूद होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन अदारे अप्रूवल नहीं देते, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह यही आपने गुफ्तगू इनिशिएट की है। मैंने तो सिंपल अपना एक कमेंट इसमें शामिल किया है। अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की एफर्ट्स को, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश, इस मेहनत को रंग लाए और हमारे अदारों को कोई अकल आ जाए, कोई समझ आ जाए, और वो इस प्राइवेट सेक्टर को चलने दें। वो हमारे लिए फैसिलिटेटर बने, ना कि हमारे लिए रुकावटें खड़ी करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस पे भी एक वेबिनार करेंगे, ये हाउसिंग सोसाइटी क्या बला होती है। मैं खुद एक हाउसिंग सोसाइटी मुर्गा सिटी में 12 लाख रुपए हार चुका हूँ, जो कि मुझे लगता है एक फ्रॉड था, बिल्कुल कुछ और उसमें नहीं था। बट खैर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत अच्छी इनॉग्रेशन होगी स्लज की। हम स्लज या दलदल पे हम और काम करेंगे, और इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे अगले 3-4 साल, जो भी कुछ हर महीने कोई ना कोई रिपोर्ट आपको स्लज पे देते रहेंगे, दलदल पे। और आप प्लीज नोट करते रहिए कि जो दलदल है ना, इसकी वजह से हम पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप सोचें आप रेस भाग रहे हैं और आप दलदल आपकी नीचे जमीन बना दी जाए, तो आपने क्या रेस करनी है, आपने क्या रेस भागनी है। तो इसका यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, बिकॉज हम सारे दलदल में फंसे हुए हैं। सारा दिन एनओसी लेते हैं, टेस्टेशन लेते हैं, सारा दिन को वो परमिशन लेते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। एक दफ्तर का चक्कर लगाना मीन्स आपका पूरा दिन जाया हो गया है, और ये हमें देखना चाहिए। जी इंजीनियर खजर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं दो बातें करनी है। एक तो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन HEC ने 15 अप्रैल को ये पाबंदी लगा दिया है कि कोई 5 ईयर से अगर बड़ा स्टूडेंट होगा उम्र में, तो वो मास्टर में दाखिला ले सकता अगर उसने वजीफा लेना है और स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, और 40 ईयर से ज्यादा बंदा उसमें नहीं जा सकता PhD में। और इसके अलावा अगर वो स्टाइपेंड ही लेना चाहता है तो 40 साल का MS नहीं कर सकता, और 45 साल से ऊपर वाला बंदा PhD नहीं कर सकता। दिस इज फ्रॉम 15 अप्रैल 2021। ये इंजीनियर साहब, खजर साहब, ये इस पे HEC पे अलग बात करेंगे। आज स्लज पे रहने दें, HEC पे इंशाल्लाह बात करेंगे। चलिए, स्लज पे ये है कि ये जो थी वो, जी सर, दूसरा ये था, मैं एक दूसरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि जो कह रहे हैं कि जी आप कहते हैं कि जी वो खत्म हो जाएगी रिश्वत वगैरह, तो लोग डरे हुए जो रिश्वत दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन वो दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, जो मैं सुनता हूँ। मैं तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन पीपल आर सेइंग कि दे जो पहले 2016-17 में या 18 में चल रहा था, वो अगर कोई कहीं पे 5 के हिस्से देने से बनता, वो 20-25 देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो आई डोंट नो, लेकिन ये भी चीज जो है फैक्टर है कि ये इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन। ये जो हमारे रिश्वत का बाजार है, इसका भी कोई वो तोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर निकालें तो बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है ना ही निकाले, हमने रिश्वत की खेल, करप्शन की खेल बहुत खेल ली है। करप्शन जैसे कि गुनाह है, इंसानी जिंदगी से निकल नहीं सकती। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इब्लीस को इजाजत दी है। अब हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं? इब्लीस को तो अल्लाह ने इजाजत दी, हमने तो नहीं ना दी, तो उसने हमें बरगलाना तो है। तो एक पाक सोसाइटी क्रिएट करने की जो हमारी एक किस्म की एम्बिशन है, ये गलत एम्बिशन है, बिकॉज सोसाइटी पाक हो ही नहीं सकती जब तक इब्लीस को अल्लाह ने रहाई दी हुई है। तो करप्शन को छोड़ दें, अपने सिस्टम बनाना शुरू करें ताकि आप आगे चलें, अपनी दलदल तो खत्म करें, अपनी प्लेइंग फील्ड तो लेवल करें ताकि लोग भाग सके। तो माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, कंग्रेचुलेशंस, लेट्स कीप डूइंग द स्लज रिपोर्ट, वील कम बैक टू यू अगेन सून। खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट, माय अप्रिसिएशन।